पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Assalamualaikum viewers and listeners, welcome back to All Around Set, your favorite women's podcast. Episode number 41 is here. Myself Ahmed. आज हम रिव्यू करने लगे हैं पाकिस्तान की कैंपेन at Women's World T20. I know and I can apologize because it's kind of 9 days जब पाकिस्तान officially knocked out हो चुकी थी because it was 14th of October जब पाकिस्तान team knocked out हुई. But it really helps that all the emotions have been taken out. So we will be as fair as much as possible. So for all that purpose, I'm really glad to have got the presence of Sakina. She was kind of partially reason जिसकी वजह से हम कुछ early content नहीं कर पाए because of mainly of her unavailability, but for all good reasons, for all the famous reasons. And as I ever say, she is the OG, EG, and whatever of women's content cricket. So Skinner Nas, thank you so much for joining. क्या हाल चाल? Thank you, Ahmed, for having me. I'm good. How are you? यस हाँ थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है तो आई थिंक सो सबके पास एक फीवर फीवर किस तरह के स्टेज पे आएगा बट एनीवे लेट्स गेट क्रैकिंग टुवर्ड्स द वुमेन्स कैंपेन ओके स्किनर परफॉर्मेंसेस पे ब्लॉक्स हम डीप डाउन ऑफ कोर्स टच डाउन करेंगे बट हैविंग वॉच्ड फ्यू गेम्स आपने बिट्स एंड पीसेस में देखा शायद आप डिस्क्लेमर मैंने पहले ही पुट आउट कर दिया बट एनीवे what are the key reflections from your side? It can be of your emotions कि यार वर्ल्ड कप से पहले तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान ये नहीं हो सका so just few reflections of how you have felt Pakistan performance at World T20 before we go deep down into player performance या department wise जब हम बात करें. Okay, so first of all, a disclaimer कि मैंने सारे मैचेस नहीं देखे हैं बल्कि कोई मैच पूरा फुली नहीं देखा है. मैंने Okay. बिट्स एंड पीसेस से मैचेस फॉलो किए हैं क्योंकि आई वाज बिजी, आई वाज ट्रैवलिंग. तो जहाँ तक इमोशंस की बात है तो क्योंकि वो मैं जिस तरीके से फॉलो कर रही थी, होता ये था कि एक मैच स्टार्ट होता था, आई जस्ट गो थ्रू 1 और 2 ओवर और उसके बाद फिर मैं देखती थी तो जाके वो 10वें 11वें ओवर पर कहानी बदल चुकी होती थी. सो हाँ. इमोशंस कुछ ऐसे ही चलते रहे हैं. जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है तो आई डिडंट हैड एनी एक्सपेक्टेशंस वेरी ऑनेस्टली. आई नो अ Okay. लॉट ऑफ पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक about our campaign this time. It was because like Fatma was leading and everything, but I kinda knew that this was coming. This was expected to me at least. I don't know about others. हाँ, थोड़ा सा जो ज़्यादा disappointed रहा वो ये था कि I wasn't expecting our batting to fail this badly. हाँ. जितना badly fail हो गया. So that was something. Other than that, I feel like it was kind of identical to our previous campaigns in World Cups. Uh, Yeah. Close losses, injuries और एंड लॉट्स ऑफ हाँ. जो है ना इस तरह के कि अगर ये ना होता तो शायद ऐसे हो जाता. आई डोंट नो व्हाट्स व्हाट इज इट लाइक. हाँ. हमारे साथ कर्स है कि हम लोग जब भी वर्ल्ड कप की कैंपेन्स आती हैं देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद Yeah. प्लेयर्स के. कभी किसी की इंजरीज मिड टूर्नामेंट्स हमें देखने को हाँ. मिलती हैं. कभी हम जब बिल्कुल जा रहे होते हैं तब हम बहुत मेजर इंजरीज देखते हैं. कभी पर प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे होते हैं, डायरेक्ट कम बैक कर रहे होते हैं वर्ल्ड कप के दौरान. Major players, and Yeah. I'm talking about important players. I'm not talking about कि हाँ. चलें वो. Yeah. Fringe players. Yeah. हाँ, तो वो चीज़ें जो है वो अगेन इस दफ़ा भी हुई और वो. हाँ. So yeah, it was kind of like I'm going to be honest, I wasn't even sure before the World Cup starts कि we are going to win from Sri Lanka even, because I Okay. was Okay. kind of knew कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस पे वो करेंगे. And I actually prepared myself mentally कि हम बिल्कुल ही सारे मैचेस हार के वापस आएंगे. तो Oh, okay. सो उस लिहाज से Okay. देखा जाए तो इट वाज़न्ट दैट बैड क्योंकि एटलीस्ट वी हाँ. वॉन वर्सेस श्रीलंका. Yeah, yeah. हाँ, सही. I get your gist. For me, quickly move करेंगे because we have lots to discuss. For me, a very tough World Cup to analyze. In terms of emotions, मैं एक line ही put करूँगा bag of mixed emotions. That is,
बिकॉज श्रीलंका को हराना फॉर मी, मैंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के गेम को मार्क आउट किया होता बिफोर द वर्ल्ड कप के। एक तो हम परफॉर्मेंस अच्छी देंगे और दूसरा ये कि अगर हमने रिजल्ट निकाला तो इन 2 मैचेस में निकालेंगे। तो आई वॉज रियली लाइक ओवर द मून जिस तरह हमने लाइक एशियन चैंपियंस को हराया, और इन अ वे उमैमा सोहेल रोज अप और फातिमा सना के लाइक कैप्टनसी T20 वर्ल्ड T20 कैप्टनसी शुड आई से, दैट वाज द हाई। इंडिया के गेम को मैं प्रिटेंड करूंगा कि इट डिडंट हैपन बिकॉज मैंने एक बाल भी नहीं देखी, और वैसे भी बेंजो वो बेंजो आप ऑलमोस्ट लिटरली हर दफा हार ही जाते, सो आई कैन प्रिटेंड एंड कैन सेफली कम टू पीस विद इट कि वो मैच हुआ ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑफ कोर्स इसके बीच में वो फातिमा सना की ट्रेजेडी होती है, एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट माई सेल्फ, बट मैं अपने से इमोशंस मैच कर सकता हूँ कि लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई फादर, सो आई वॉज जस्ट रियली रियली डाउन। मेरे अपने पीटीएस ट्रिगर हुए थे, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ इट वॉज लाइक हमारे प्लेयर्स शैटर्ड नजर आ रहे थे, एंड वी जस्ट कुडंट कोप विद ऑस्ट्रेलिया हु आर अ डैम डैम गुड साइड। बस वही मेरा थ्रू आउट ये कंसर्न चला था कि श्रीलंका के इस गेम के बाद इंडिया के गेम में हमने लाइक हारे, वो ठीक है, दैट रेट पे आई वाज रियली फाइन कि हम बहुत बुरा नहीं हारे, ठीक है, हारना इटसेल्फ इज नॉट अ गुड हैबिट, बट हमें अपनी लाइक कंस्ट्रेंट्स का पता, तो वी डिड वेल। ऑस्ट्रेलिया के मैच में वी जस्ट वर कंप्लीटली बैम्बूजल्ड। न्यूजीलैंड के गेम में दैट वाज लाइक फॉर मी एन अननोन टेरिटरी बिकॉज if things went our way and we could have caught few catches here and there, like वो जो what if moment के साथ आप indicate कर रहे थे, so it was a really high on Sri Lanka and New Zealand के game के round, a really low between India and Australia game, so a really tough moment। और वही जो मुझे बहुत disappointment रही ना वे, आप मैचेस हारते हो लाइक जिस वे में आप मैचेस हारे, स्पेसिफिकली जो साउथ अफ्रीका के मैचेस के बाद हम हाई में चले थे क्या, हमारी बैटिंग की अप्रोच चेंज हो गया, प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, सो दैट वाज रियली डाउन साइड। सो एनीवेज के ना डिटेल्स में जाना शुरू करते हैं, and no better player and no better point than the Maverick Fatma Sana herself. Of course, वर्ल्ड T20 की असाइनमेंट दी जाती है इन टफ फेजेस, आपने अपने थॉट्स इस पे कन्वे कर चुके हैं, बट द वे शी रोज अप एज लीडर, और मेरा बस वही थोड़ा कंसर्न था कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस डिप ना हो। आप अपनी हाइलाइट्स मोमेंट्स पे कर सकते हैं कि व्हाट स्टूड आउट द मोस्ट ऑफ हर फ्रॉम हर परफॉर्मेंसेस। मुझे एज बॉलर हमेशा लाइक व्हेनेवर शी गेट्स द विकेट, वो खुद भी फील करते हैं कि व्हेनेवर शी गेट्स द विकेट शी इज मोर पंप देन हर रन, सो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत बड़े विकेट्स लिए जमीमा के लिए, रिचा के लिए, और श्रीलंका के मैच में अप फ्रंट वो चमारी को आउट के विच सेट अस अप फॉर अ ब्लडी गुड विन, और अ रियली ब्रेव स्टेप फ्रॉम हर कि वो लीड करने वापस आई। इट वुड हैव बीन रियली रियली फाइन कि वो अपनी फैमिली के पास रहती, एंड यू नो इट इज अ ग्रेट पीरियड फॉर हर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स के आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के मैच में वो सेलिब्रेट कर रही है, बट इवन बिफोर दैट वो फिजिकल मेंटल टॉल बहुत कुछ लेके जाता है आपसे। आपको ये नहीं फील करना चाहिए कि फातिमा सना नॉर्मल होगी या उनके फ्रेंड्स नॉर्मल हो चुके हैं या उनकी टीम नॉर्मल हो चुके हैं, जस्ट बी काइंड विद देम, बट ऑफ कोर्स एआरडी के प्लेटफॉर्म से सिंसियरेस्ट condolences to our family, and yeah, so Sakina, your thoughts about Fatma Sana, how the tournament went for her? Well, she's a really brave person. I'm going to be very honest with you because like I don't know, like I don't want कि कोई भी any kid would have to like put up a brave face and go to work again like this quickly after like having such tragedy, losing a parent obviously. So yeah, she is जो हम उनकी bravery की बात करते हैं, we have always seen her like that, like someone uh, who is ready to take up the challenge। और वही चीज़ हमने देखी भी है फ्रॉम द मोमेंट शी के जब से उनको कैप्टनसी मिली है, इवन एज अ वाइस कैप्टन, एज हमने न्यूजीलैंड में देखा था जब उनको अचानक से जो है वनीता की इंजरी के बाद कैप्टनसी करनी पड़ी थी, तो लाइक Great शी इज point, समवन great जो point. शी इज समवन जो के चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और कोशिश करती हैं टू लीड, लाइक शी इज
आई थिंक हमारी हिस्ट्री रही है आई एम गोइंग टू से दैट कि हमारे जो कैप्टन्स हैं दे हैव टू पुट अप मोस्ट ऑफ द वर्क whenever they are leading. हाँ And I don't know why is it like that. I don't want it to be like that. Like I don't think any team has to be like that कि आपका जो कैप्टन है कि उसको जो सारा का सारा जो है वो बर्डन उसके ऊपर आ जाए. तो इसके अंदर भी हमें वही चीज कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि इवन लाइक शी इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग के अंदर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि फातिमा के अलावा किसी ने भी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन की है पूरे टाइम पीरियड के दौरान. लाइक तो आई फील जी लाइक कि कहीं ना कहीं फील होता है आपको कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे जो है वो कैप्टन्स को ये चीजें जो है वो हो जाती हैं. बट या आई गेस हम मैंने वर्ल्ड कप से पहले वाली जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें ये बात कही थी कि आई एम नॉट श्योर कि इफ दिस इज द टीम शी वांटेड. सो हाँ सो आई थिंक कि बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा. ऑब्वियसली आई नो कि उस तरह से जिस तरीके से पूरी कैंपेन को लेकर चलते हो वर्ल्ड कप की, वो वैसी चीज नहीं हो सकी है बिकॉज शी हैड टू कम बैक. लेकिन या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी, क्योंकि इस तरह से आपको जिस टाइम वर्ल्ड कप इज ऑलवेज डिफरेंट. जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा कि मैंने श्रीलंका को और न्यूजीलैंड को मार्क किया हुआ था कि इनके बिल्कुल अगेंस्ट जो है हम लोग रिजल्ट्स लेकर आ सकेंगे. तो वर्ल्ड कप कितना डिफरेंट हो जाता है आपके लिए वो आप न्यूजीलैंड के मैच से देख सकते हो कि किस तरीके बिल्कुल से इवन के हम फर्स्ट हाफ के अंदर 110 पे उनको रोक चुके हुए थे, बट देन स्टिल जिस तरीके से हमारा बैटिंग कोलैप्स किया. या तो ये चीजें वर्ल्ड कप के अंदर ही आपको मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलती हैं, इस किस्म की चीजें होती हुई. तो इस फातिमा का फर्स्ट एक्सपीरियंस था. आई होप कि या शी हैज लर्न अ लॉट. और आई एंड आई थिंक कि जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइम वो ये कि फातिमा के साथ साथ जो टीम के अंदर बाकी जो प्लेयर्स हैं, आई हाँ एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीनियर मोस्ट प्लेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिद्रा और आलिया, आई एम टॉकिंग अबाउट मुनीबा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेट तुबा. ग्रेट they पॉइंट have या they have to learn from Fatma how to take the charge. कि जब आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, आई थिंक निदा का हमें प्रेजेंस फील हुई. निदा के अलावा या किसी सीनियर प्लेयर की ऐसी प्रेजेंस फील नहीं हुई. ओके, या नशरा ने ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट किया काफी. हाँ तो लेकिन मैं बैटिंग के हिसाब से अगर बात करूं स्पेसिफिकली, तो उस चीज को देखते हुए आई फील लाइक कि स्पेसिफिकली मुनीबा के लिए ये चीज कहूंगी कि शी नीड्स टू लाइक I don't know how to say it without being rude. कि she needs to pull herself together. कि this is not how you are going to be a vice captain in a या team. तो yeah, I don't know how to like फातिमा की जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है. But I hope या कि she is doing well right now and she is recovering. एंड जो है वो होपफुली जो हम नेक्स्ट जब भी हम देखेंगे उनको खेलते हुए तो वो ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगी. बट आई ऑल्सो वांट कि हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी स्टेप अप करें अब. So true. I do echo your thought, and of course, again, love, warmth, and prayers towards Fatma Saleh and her family. Uh, I- okay, और lastly to round off फातिमा से ना इधर आप इसमें भी आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है कि अब लोगों ने समझने लगे कि शी इज अ हिटर. भाई न्यूजीलैंड के इनिंग्स देखे वो अटेंशन करते नजर आ रहे थे इस पास में किस शी वाज लाइक लास्ट वुमन स्टैंडिंग. इवन न्यूजीलैंड का अवे टूर देख ले, साउथ अफ्रीका की होम सीरीज देख ले, शी कैन डू द अटेंशन जॉब एज वेल. सो बैटिंग में शी हैज रियली jumped up and I was really glad. मुझे बहुत खुशी होता है जब Yes. वो विकेट्स लेते हैं. So moving on next thing, shining lights जहाँ पे हमारे differences are there, but it is all good. Or people might be wondering why Nidadar is in there. But anyway, Sakina, आप Sadiq Iqbal and Umayma Sohail पे touched on range, any other shining lights? A few shining lights were there. We have to highlight them because uh, like 10 साल के बाद 8 साल के बाद जब भी हम इस वर्ल्ड कप पे देखेंगे हमें मैचेस ऐसा नहीं याद रहेंगे बट ये परफॉर्मेंसेस याद रहेंगे. मुझे उमैमा सोहेल का वो स्पेल नहीं भूलने लगा, वो सेलिब्रेशन नहीं भूलने लगे जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ऑफ कोर्स एक ही विन हमें हासिल की उसमें शी वाज रियली रियली वाइटल. सो हु वर द शाइनिंग लाइट्स? नशरा इधर स्लाइड पे मिसिंग है, आपने शाउट आउट दे दिया, बट एनीवे हैव योर थॉट्स अबाउट शाइनिंग लाइट्स फ्रॉम योर साइड.
ओके सो जहाँ तक सादिया की बात है तो सादिया जो है वो हमेशा से आई थिंक हम अब वो हम उस वाले फेज से निकल चुके हैं जिसमें हम कह रहे थे कि सादिया अंडर रेटेड है। अब हम उनको हाँ अच्छे से रेट कर रहे हैं फैंस। और और तो सादिया के लिए तो आई डोंट थिंक आई हैव टू से एनीथिंग बिकॉज शी डिड हाँ हर थिंग और उसी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। जहाँ तक उमायमा की बात है कि yes, as you said about her spell and about her celebration and everything, but at the same time अगर हम उनको एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हैं सो शी हैव टू कंट्रीब्यूट विद बैट एज वेल। वो नहीं ग्रेट हुआ। पॉइंट। सो हाँ ग्रेट पॉइंट। दैट्स समथिंग कि जिसकी अभी लाइक शी डिड प्ले अ decent knock, I'm going to say, because it wasn't totally a bad knock against Sri हाँ Lanka, but हाँ at the but again स्ट्राइक रेट के ऊपर ही सबसे बड़ा जो इशू था, स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर बहुत बड़ा इशू था। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो is something that she needs to work on because अभी क्योंकि हमारे साथ अभी हम निदा को भी अब देख रहे हैं। निदा के स्टार्ट आपने लिखे भी हुए हैं स्टार्ट। तो हाँ निदा वाज लाइक आई गेस बैटिंग ओवरऑल जो थी उनकी शायद आई थिंक 90 का स्ट्राइक रेट रहा है एंड उमायमा का तो आई थिंक उससे भी कहीं कम होगा। तो हाँ कम था। Yeah. हाँ तो दैट वाजंट इट। आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते। अब अभी इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि अदर देन फातिमा जब और फातिमा का स्ट्राइक रेट आई गेस 120 प्लस था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 130 है फातिमा का। Yeah. हाँ सही। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज बॉदर कर रही है इस टाइम कि उमायमा को और ये चीज भी मुझे एक तरीके से बॉदर कर रही है कि उमायमा को उतना शायद कॉन्फिडेंटली मैनेजमेंट भी नहीं थी उनकी बैटिंग के ऊपर कि Yeah. You have hit तो वो the चीज nail on the head. Yeah. हाँ Yeah. क्योंकि दो मैचेस में आई थिंक फोर्थ नंबर भेजा गया फिर फिफ्थ नंबर भेजा गया और उसके बाद तो काफी हाँ डाउन द ऑर्डर भेजा गया। सो वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज कि अगर उनके फॉर्म में नहीं कर पा रही थी तो मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि इफ द मैनेजमेंट वाज कॉन्फिडेंट वो उनको कंटिन्यूसली एक ही नंबर बैट कर रही होती कि चले हाँ आज नॉक नहीं आया तो अब नेक्स्ट मैच में आ जाएगा लेकिन वो चीज भी नहीं हुई। शी नीड्स टू वर्क ऑन इट बिकॉज शी इज समवन that I feel like it could be a potential replacement of Nida Dar एज एन ओके ऑलराउंडर। ओके। लेकिन बैटिंग के बगैर तो वो नहीं हो सकता बिल्कुल। और उमायमा के ऊपर एक हाँ और चीज भी मैं कहूंगी। आई डोंट नो आपको आपको शायद आपको तो नहीं पता होगा 2018 के अंदर अराउंड आई थिंक शी ओपन फॉर अस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड शी डिड प्लेड ओके अ रियली गुड नॉक। तो शी ओके। हैज दैट टैलेंट शी हैज दैट potential in her. I feel बिल्कुल like ओके। she is facing some technical kind of um, हाँ वीकनेस जिसको प्रॉब्लली फिक्स किया जा सकता है अगर कोचेस ने प्रॉपरली काम करें उनके ऊपर। तो दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स। निदा की या जहाँ तक अगर हम बात कर लेते हैं तो आई प्रेजेंस उनकी उतनी महसूस नहीं हुई इस टूर्नामेंट के अंदर जितनी होनी चाहिए थी। आई फील लाइक या कि बहुत एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी। और जैसे हाँ कि वो आप खुद ही आपने खुद ही स्टार्ट में कह दिया कि वी कैन से इसमें बनता नहीं था नाम उनका बट शी स्कोर द ओके। मोस्ट रन एंड दैट्स ट्रेजिक एज वेल फॉर अस। कि आप ये देख लो हाँ कि आपके वो सीनियर प्लेयर्स जो कि शायद अपने करियर के सबसे डाउन मोमेंट के ऊपर हैं इस टाइम एंड शी वाज हाँ द वन हु स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द रन्स। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। आपको समझ आता है कि जो आपके जो यंग प्लेयर्स हैं या फिर यंग प्लेयर्स को भी छोड़ दो वो प्लेयर्स जिनको हम अब यंग कंसिडर नहीं करते एंड दे आर सपोज टू हाँ बी रिप्लेसिंग दीज सीनियर्स आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। अप बिल्कुल। टू द मार्क को छोड़ दें दे आर नॉट इवन कमिंग क्लोज टू देम। तो या तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं चीज सोचने में मजबूर कर देती है कि जो इतनी इन्वेस्टमेंट की गई हुई है कहीं वो जाया तो नहीं होने वाली है आपकी। हाँ ग्रेट पॉइंट ग्रेट पॉइंट। स्किनर आर यू डन राइट? यस। हाँ ओके। मैं निदा को बस थोड़ा सा डिफरेंट इन अ वे कहना चाहूँगा। मैं पहले बॉटम लाइन पहले पुट कर दूँ। इट वाज pretty poor like tournament from pretty much every player bar few performances from few players। तो स्टैंडर्ड सबके डाउन हो चुके थे। तो रिलेटिव टर्म में ही बात करूँगा इस टूर्नामेंट में रहते हुए निदा वाज लाइक शी डिड ओके। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स मुझे नहीं बोलेंगे कि वी वर रियली स्ट्रगलिंग विद बाउंड्रीज और सना मीर को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो
और द कमेंट्री बोल रहे थे कि डाउन द ट्रैक प्लेयर्स को टेक आउट करें, तो निदा डार ने डाउन द ट्रैक प्लेयर्स को टेक आउट किया और 2 बाउंड्रीज पे मारी इंडिया के अगेंस्ट। शी वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर अस। और इस टूर्नामेंट में भी शायद हम अगले सेगमेंट में आपको स्टैट सके, 2 हाईएस्ट पार्टनरशिप्स निदा डार उनमें इन्वॉल्व रही है। दैट इज वन थिंग। बॉलिंग में आई आई डू एग्री, एक विकेट निदा डार के स्टैंडर्ड्स क्या किसी लाइक नॉर्मल बॉलर के भी वर्ल्ड टी20 में जब आप खेल रहे हो, तो इट इजंट अ गुड स्टैट। बट श्रीलंका वाला मैच ठीक है, मेंबर्स वाले विकेट्स ली थी, बट निदा डार ने पहले 2 ओवर में सिर्फ 4 स्कोर कंप्लीट किए थे। वो मेंबर्स वाले दूसरे एंड से लाइक क्लीन अप कर रहे थे बैटर्स को। सो एज अ डुओ शी वर्क रियली गुड। न्यूजीलैंड का मैच आई आई थिंक मैंने खुद काउंट किया था, आई माइट हैव लॉस्ट दैट फिगर। निदा डार की बॉलिंग में 3 डिफरेंट बैटर्स के कैचेस छूटे थे, so that figure might have been more. She had that impact, so I am gonna defend. But having said it, Nida Dar के standards हम बहुत high देख चुके हैं. She can do much better than that. So that is just my defense for it. And yeah, we have to think about transition and stuff like that. Sakina ने बहुत अच्छा put out कर। Okay, Sakina, I think so. दशरथ पे हमने बात कर ली है, so let let's discuss the negative things, I would say, and that I am being very kind. बैटिंग पोस्ट पे टचडाउन कर लेते हैं। एक जो मेरा टेक अवे बन रहा था, ठीक है, इंडिया की मैंने गेम मिस की, आई हैव रीवॉच्ड इट बैक, लाइक एक दफा हाईलाइट देखी, दैट डिटेल्ड हाईलाइट्स, कुछ आर्टिकल्स पढ़े। मेरा जो लाइक टेक अवे कह लो वो ये था कि शारजा की जो बाउंड्री थी, वी इट रियली सूटेड अस। निजाम ने भी उस पे बाउंड्रीज मारी, इवन उमैमा हिट अ बाउंड्री, एंड ऑफ कोर्स रूप शाह ने भी रूप शाह तो नहीं, हाँ, रूप शाह ने मारी। सो शारजा की डायमेंशंस छोटी है। जब हम दुबई में गए, हम हम जो हमारी ट्रेडिशनल कह लो, जो हमारी स्ट्रेंथ है कि रन्स एक्यूमुलेट करो। स्ट्राइक रेट की हमें टेंशन इस सेंस में नहीं लेनी चाहिए थी कि हमारा स्ट्राइक रेट उतना नहीं था, बट हमारे ज़हन में ये बैठ के कि हमने बाउंड्री सेट करनी है। दुबई की स्टेडियम पे थ्रू आउट, अगर आप स्टैट्स बाकी टीम्स के भी देख लें, वो इतने हायर स्कोर नहीं टच आउट कर सके। कमेंटेटर बार-बार बता रहे थे कि एक तो बाउंड्री की डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, जो स्क्वायर्स है वो लश ग्रीन नहीं है कि बॉल उससे स्किड थ्रू करके जाए। आउटफील्ड भी काइंड ऑफ स्लो थी। सो हैविंग कंसीडर दैट पॉइंट, मैं जरा कोचिंग की तरफ टिल्ट करना चाहूँगा। आई नो प्लेयर्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, शायद मैं लेटर डाउन उसकी ना कि बात के बाद मैं शायद प्लेयर्स पे भी आ जाऊँ। बट हैविंग सेड इट, एक कोचिंग की तरफ मैं ये बात करूँगा कि उन्होंने डायरेक्शन थोड़ी-सी गलत फेंकी। असल है कि मैच में प्लेयर्स वर गोइंग कि यार या छक्का मारना है या आउट, लाइक कुछ नहीं करना। सो दैट वाज़ रियली बैफलिंग फॉर मी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज़्यादा हट गया था। ठीक है, आई रियली गेट इट कि यार पॉजिटिव खेलना है, बॉलर्स को टेक आउट करना है। बट हैविंग सेड इट, मुनीबा डिडंट राइज़। सिद्रा का हम काफ़ी अरसे से, मैं तो काफ़ी अरसे से एप्रीहेंसिव हूँ कि वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में तीनों इनिंग्स में क्रॉस पैकेट शॉट मारकर आउट हुई। इस मैच में लाइक इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 4 के चारों मैचेस खेल के, डोंट नो हाउ 4 के 4 में से 3 मैचेस में वो क्रॉस पैकेट शॉट मारते हुए आउट हो गए। ये मैं कह रहा हूँ वेरी लाइक बहुत मीडियोकर फैन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। अगर मैं ये चीज़ें स्पॉट आउट करूँ तो हाई क्वालिटी अपोनेंट्स भी स्पॉट आउट करेंगे। तो हैविंग सेड इट, ये मेरी रैंट थोड़ी बड़ी हो गई, आई शुडंट हैव गॉन दैट मच लॉन्गर। बट सकीना, आपको क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई प्लेयर वाइज, अप्रोच वाइज? आई नो न्यूजीलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड वाले मैच में शायद आप रूल आउट भी कर दें कि यार वो तो अब क्या कहते हैं, बहुत आउटलैंडिश अप्रोच में चले गए कि बॉल वन से हमने मारना है, बैटिंग ऑर्डर भी चाहिए। तो एनीवे वो भी कोलैप्स ही हुआ, 56 पे आपका आउट होना था। ओके, सो अहमद, अगर आपको याद होगा कि जिससे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, तब मैंने कहा था कि आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या अप्रोच लेके जाएगी हमारी बैटिंग, कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं पावर गेम की। बट आई रियली वांटेड टू से, क्योंकि मैं उस टाइम ये बात कह नहीं रही थी खुल के, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को बात मेरी बुरी लग जाएगी ये वाली। द थिंग इज कि व्हेन यू आर फिक्सेटिंग ऑन समथिंग जिसकी एबिलिटी अभी आपके प्लेयर में है ही नहीं, आप वेरी गुड पावर पॉइंट, गेम की वेरी बात गुड कर रहे हो, पॉइंट, बट उसकी एबिलिटी वेरी अभी उस हद तक आपके प्लेयर्स में है ही नहीं, तो यू हैव टू प्ले विद योर स्ट्रेंथ्स।
आप उस चीज को इम्प्रूव करते हो साथ साथ, बट यू कांट कंप्लीटली कि आप स्ट्राइक रोटेशन को साइड लाइन नहीं कर सकते। हमने पास्ट में प्लेयर्स को 100 से ऊपर, 100 के अराउंड का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए देखे हैं इन्हीं प्लेयर्स को, विदाउट हिटिंग अ बाउंड्री, विदाउट के टूज एंड थ्रीज। आई कैन बेट कि थ्रीज तो शायद कोई गिनती के ही होंगे, इक्का दुक्का, अगर किसी ने लिए भी हैं तो रन जितने भाग के। हाँ आप जिस तरह बात कर रहे थे कि बाउंड्री जो थी वो दूर लंबी थी, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टूज एंड थ्रीज लेने की। यू कैन जस्ट बिल्कुल या कंप्लीटली कंट्रोल द गेम विद दैट। लेकिन जब आपने अप्रोच ही ये दे दिया प्लेयर्स को कि यू हैव टू हिट, यू हैव टू हिट, यू हैव टू हिट एंड देयर इज नो अदर वे, तो फिर तो ये होगा। या अब हाँ आई डोंट नो कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी, कि प्लेयर्स को समझने में गलती थी, कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके वो हाँ प्लेयर्स भी जिनको इस ये वाली सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी वो भी स्ट्रगल किए कि क्या या मुनी, चलें ओके हाँ मुनीबा का कह लेते हैं कि शी कैन कैन गेट डेस्परेट एट टाइम्स व्हेन शी इज नॉट बीइंग एबल टू स्कोर। लेकिन सिद्रा के या साथ मसला क्या था आई डोंट नो। लाइक शी कैन, आपको एक एक तो मैच के बाद समझ आ जानी चाहिए थी कि यू डोंट नीड टू लाइक बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। पिचेस आपके बॉलर्स को सपोर्ट करेंगी, आपको जस्ट थोड़ा सा थोड़ा सा होल्ड रखना है अपने गेम के ऊपर एंड यू विल बी एबल। आपको देख वही बात फिर से आ जाती है ना कि आपको देखने वाला शायद आपको जो है ना आपको जो आपकी फैन ऑडियंस है वो शायद आपको कहेगी इस बात के ऊपर कि क्यों जो है वो आपका प्लेयर विदाउट हिटिंग अ बाउंड्री जो है वो उसको उसके ऊपर काम कर रहा है। बट वही अप्रोच आपको रिक्वायर्ड थी जब आपका बैटिंग बैटिंग जो पूरा ऑर्डर है फेल कर रहा है। वही अप्रोच आपको रिक्वायर्ड थी कि या समवन नीड्स टू स्टे टू कंट्रोल द गेम टिल द डेथ ओवर्स, और डेथ ओवर्स में जाके आप हिटिंग करते हैं। और वहीं पर कहीं ना या कहीं डिसअपॉइंटिंग मुझे एक जगह पे, आई थिंक इट वाज निदा, आई एम नॉट श्योर कि विच गेम विच मैच इट वाज, कि जिसमें आई थिंक आई थिंक इट वाज अगेंस्ट इंडिया, शी स्टेड ऑलमोस्ट टिल द एंड टिल द डेथ ओवर्स, और डेथ ओवर्स में वो हिट नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, मतलब मैच फिनिश नहीं हो सका था एंड दैट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। या लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वही चीज आपको रिक्वायर्ड भी थी कि आपका एक प्लेयर कम से कम खड़ा होके कंप्लीटली कंट्रोल करे इनिंग को टिल द डेथ ओवर्स, टिल द लास्ट 3-4 ओवर्स, ताकि आप या इतने आप उस सिचुएशन में ना हो कि जहां पर आप एंड में बैठ के ये सोच रहे हो कि बस 10 रन शायद और होते तो हम मैच ले जाते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो और यही चीज और देखो आई थिंक जी जी या आप बताओ। कंप्लीट योर पॉइंट, नहीं कंप्लीट योर पॉइंट, कंप्लीट योर पॉइंट। या आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट आई वाज वरीड अबाउट कि जहां पर आपको बैटिंग फ्रेंडली थोड़ी सी पिचेस मिलती हैं वहां पर, और जहां पर आपको आपके स्टेक्स आर नॉट दैट मच हाई, वहां पर आप प्लेयर्स को कहो कि खुल के खेलें, लाइक यू हैव टू हिट, यू हैव टू हिट, क्योंकि क्या हो जाएगा, ज्यादा मैच हार जाओगे, या नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट व्हेन यू आर इन अ वर्ल्ड कप जहां पर आपके आपको काइंड ऑफ नॉट ओनली कि आप जो है वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे होते हो, बट एट दैट इन द वर्ल्ड कप कैंपेन्स आपको वो लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं जो कि रूटीन में नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू बिल्कुल लाइक प्ले फॉर, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड टू यूज हेयर, कि आपको अपनी कहीं ना कहीं वो बात है कि थोड़ी सी ये बताने के लिए कि वी कैन डू समथिंग, वो मेंटेन करने के हाँ लिए भी यू हैव टू प्ले। तो बिल्कुल या ही अगर आप एक ऐसी चीज के ऊपर फिक्सेट कर रहे हो खुद को जिसकी एबिलिटी अभी तक उस हद तक है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई है आपके प्लेयर्स के अंदर, तो फिर कहीं या ना कहीं आप जो है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। एंड इट wasn't only a risk, it was a complete like कि अब अगेन या मुझे नहीं पता कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, मे बी दैट वाजंट द इंस्ट्रक्शन, मे बी हम कहीं ना कहीं वो जेन्युइन फेलियर ब्रेन डेड मोमेंट हमने फेस किया यहाँ पर। बट आई फील लाइक हाँ जिस तरीके से फिक्सेट हो रहा था पावर गेम को लेके, सो आई फील लाइक इट दैट माइट बी द रीजन कि हम बिल्कुल ही जिस तरीके से बैटिंग हमारी फेल हुई है, कि प्लेयर्स wasn't putting that much effort in या other side of things, कि सिर्फ बिल्कुल फिक्सेट बिल्कुल किया हुआ था बाउंड्री हिटिंग को लेके। हाँ बिल्कुल। इसी पे एक पॉइंट है वो मोहम्मद वसीम के हमने अ, अच्छा इसके ना आपके थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इफ यू कैन म्यूट इट और फिक्स इट फॉर नाउ, इफ यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ थोड़ा बैकग्राउंड, थैंक यू। सो या मोहम्मद वसीम पे पॉइंट है वो, लाइक हमने एक और नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करना, तो
We will discuss it then. I don't know how to discuss this particular segment जिसके आप साइड अभी देख रहे हैं, that is fielding and fitness issues. कैवेट आप लोग सब लोग थ्रो कर सकते हैं कि बाकी टीम्स में भी कैचिंग एफिशिएंसी कोई अच्छी नहीं थी, एंड आई डू गेट इट. फिटनेस के इश्यूज हमारे वेल डॉक्यूमेंटेड है. इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को भी इंजरीज इश्यूज है, किस किस को नहीं हुए, ठीक है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर वी डू काउंट इट. बट हैविंग सेड इट, दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि दूसरों को हो रहे थे तो हमारी भी करना बनती है. एंड I mean, as much as we can feel sorry, and we should feel sorry for Dynamic World Cup आपका like back to back World Cup मिस होना किसी प्लेयर के कैरियर में, इट इज नॉट अ गारंटी कि आप अगले वर्ल्ड कप तक कैसे किस फॉर्म में हो गए. शायद आप फिट हो, लाइक इन फॉर्म में लगे हो तो जो माइट बी ड्रॉप्ड. सो आई रियली फील सॉरी फॉर हर बिकॉज आई रियली ट्रस्ट इन हर एबिलिटीज. और शायद वैसे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उनको इतना खिला नहीं रहे थे, तो शी इज सकीना के वर्ड्स में कह लें कि शी इज आवर बेस्ट फील्डर एज वेल. सो बट हैविंग सेड इट, न्यूजीलैंड की गेम से पहले हमारे फिगर्स इतने बुरे नहीं थे. कैचिंग वाइज बात करूं, न्यूजीलैंड के मैच में आई नो 8 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, दैट इज रियली रियली हॉरिबल. इवन सिद्रा की कैचिंग बहुत अच्छी होती है. सो दैट वाज लाइक वेरी ट्रिकी थिंग टू नो. बट जब आप सनामी के कोर्स पढ़ते हैं कि फिटनेस टेस्ट काफी अच्छे से किए हुए हैं, और आई नो फील्डिंग कैंप्स लगे हैं, बट मोहम्मद वसीम जब से आए हैं वो बात करें कि फील्डिंग हमारी इम्प्रूव होती जा रही है. बट ऑन द लॉन्ग ग्राउंड वी वर टेस्टेड, हमारे थ्रोज उतने अच्छे नहीं थे. सो आई डोंट नो वेयर टू पुट माय फिंगर्स ऑन. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि ना आप कैसे इस सेगमेंट को कवर करेंगे. सो स्किन आई हैव योर थॉट्स. I have a theory, Ahmed, कि I feel या like प्लीज कि प्लीज. हमारी जो fielding है, it's directly like linked to how confident we are at that day from the very first moment. हाँ, अगर आई एम. आपने या जब ग्राउंड में आप इंटर हो रहे हो ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे आपकी टीम, तो हम उस दिन कुछ ऐसा करेंगे, खुद खुद ऐसा कुछ करेंगे कि हम कहेंगे मैच हमने खेलना ही नहीं था आज. तो हमने ये पास में देखा है, वी हैव सीन द डेज जहाँ पर हमारे फील्डिंग, हम कहते हैं कि ये हमारी ही टीम फील्डिंग कर रही है, और फिर हमने ऐसे डेज भी देखे हैं कि जहाँ पर हमारे बेस्ट फील्डर्स हाथों में आए हुए कैच छोड़ देते हैं, और हम या सोच रहे होते हैं कि ये मतलब कि हो क्या रहा है हमारे साथ. सो आई काइंड ऑफ फील लाइक कि इट्स डायरेक्टली लिंक टू हाउ कॉन्फिडेंट वी वर एट दैट डे, या गुड बिकॉज पॉइंट. देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन. फिटनेस का जहाँ तक इशू है, I think we have talked about it a lot in past as well कि हमारी जो टीम है, टीम क्या, हमारा जो ओवरऑल environment कह लें उस चीज को, या the हाँ way we approach these things are not up to the standard overall. जी बिल्कुल. हम लोग अपने डाइट्स को लेके इतने इतने कोई अनकॉन्शियस हैं यस, ओवरऑल. सो एज अ ट्रू. कंट्री देख लो, हाँ, प्लेयर्स एज की क्या हम बात इंडिविजुअल एज करेंगे. कलेक्टिव, या बिल्कुल. हाँ. सो आई फील लाइक कि वो जो एक काइंडा कल्चर होना फिटनेस का है, वो एग्जिस्ट नहीं करता उस तरीके से. तो बिल्कुल. इसमें आप हम वक्तन फवक्तन प्लेयर्स के ऊपर बर्डनाइज करते रहते हैं, और प्लेयर्स भी हमें ये कहते रहते हैं कि हमने ये खाना छोड़ दिया, हमने वो खाना छोड़ दिया एट टाइम्स. या चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो वुमेन्स टीम हो, ये चलता रहता है. बट आई फील लाइक कि जब तक कि वो ओवरऑल कल्चर रीसेट नहीं होता ना विद इन द होल सेटअप, तब तक आप ये चीज वहीं की वहीं अटकी रहेगी. इट्स नॉट जस्ट बिल्कुल. अबाउट कि आपकी नेशनल टीम क्या कर रही है, आपके बिल्कुल डोमेस्टिक पे चले जाओ, आप बिल्कुल एज ग्रुप्स पे चले जाओ, कि आप वहां से ये चीजें इंस्टिल की जा रही हैं प्लेयर्स के अंदर कि नहीं की जा रही. आप एक प्लेयर को जो हर चीज से गुजर के आके नेशनल टीम में आ गया, अब आप उसको कह रहे हो कि आप अपना पूरा का पूरा चेंज कर दो वे ऑफ लिविंग, तो वो या उसके लिए आसान नहीं होना है. तो यू हैव टू इंस्टिल दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरी लाइक फर्स्ट डे इन द क्रिकेट. तो क्या यस. पीसीबी वो कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा है, तो वो फिर आप यहाँ पर आके कंप्लेन मत करो, करे पीसीबी के प्लेयर्स ने फिटनेस को जिस तरीके से नहीं कर रहे हैं. आपने तो वो चीज शुरू में स्टिल नहीं की थी. आपका तो आपने कभी भी वो कल्चर बनाया ही नहीं प्लेयर्स के लिए. यस. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर अडल्ट्स.
सारे के हाँ सारे बच्चे नहीं हैं कि इनको जो है वो बिठा के बताया जाए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बट आई एम या जस्ट सेइंग कि वो जब कल्चर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता सिस्टम के अंदर, हाँ तो फिर आप या क्या उसका क्या क्या ही उखाड़ सकते हो? तो यस और फिर ऑब्वियसली चले मैं कॉन्फिडेंस की तो जो बात मैंने की थी वो जैसे की थी वो तो थ्योरी है एक। बट कहीं ना फिर जाहिर सी बात है जब when फिर जब आपने इतना मैच को जो है वो लेके चलना होता है और आई थिंक आई वुड पॉइंट आउट कि यहाँ पे वो चीज़ भी कि जब आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हो चीज़ों का, यानी कि मैच का, या एक वर्ल्ड कप के मैच का एक प्रेशर डिफरेंट होता है, ठीक है? बिल्कुल आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ ये होती है कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ तो मेरे मुझे जो है वो शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, नेक पेन शुरू हो जाता है, ठीक है? हाँ सो या ये सेम सेम पॉसिबल ही लाइक नहीं है, ये आई पॉसिबल ही डू नहीं गेट है कि इट आप के प्लेयर जो है वो एक मैच का स्ट्रेस ले रहा है, वो फिजिकली उस स्ट्रेस को फील नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल या जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली भी फील होता है। तो अगर आप वर्ल्ड या कप्स के अंदर या इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर इस किस्म की चीजें करते हो तो दैट समवेयर इज लिंक्ड टू योर मेंटल हेल्थ एज वेल, कि आप कितना जो है वो आप जो है वो किसी किसी उस प्रेशर को डील कर सकते हो। तो यस अगेन फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है कि इज पीसीबी सीरियस अबाउट प्लेयर्स मेंटल हेल्थ एज वेल और नॉट। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि बिल आपकी कहीं ना कहीं रीजन है आपके या फील्डिंग फेलियर को लेकर, फिटनेस इश्यूज को लेकर। वाह वंडरफुल थॉट और आपके थ्योरी में मज़ीद कुछ लाइफ डालने लगा सेकंड इफ यू कैन पुट योर माइक ऑन थैंक यू हाँ जस्ट टू बैक अप योर थ्योरी मैं थोड़ा लाइक आई एम गोइंग ऑल इन ऑन दैट बिकॉज श्रीलंका के मैच में देखें लाइक जब हमने वो चमारी का कैच हमने पकड़ लिया उसके बाद हमने कोई कैच नहीं छोड़ा वी वेंट आउट टू विन द मैच वो एड्रेनलाइन रश मेंस क्रिकेट में भी होता है कि वी जस्ट वेंट ऑन विद इमोशन एंड वी ब्लो ऑफ द अपोनेंट आई थिंक तीसरा मैच चलता ऑस्ट्रेलिया का लाइक जब थर्ड राउंड था मतलब पाकिस्तान का मैच नहीं था लाइक हर टीम का तीसरा मैच चल रहा था तो देयर वाज सम स्टैट पाकिस्तान की कैचिंग एफिशिएंसी 10 टीम्स में मिला के सो दैट वाज एट थर्ड हाईएस्ट सो दैट वाज काइंड ऑफ सरप्राइज ऑफ कोर्स जब वो न्यूजीलैंड वाली गेम एंड होती है बिकॉज वी रियली फेल्ट द प्रेशर फॉर व्हाटएवर रीजंस तो या सो योर थ्योरी मेक्स सेंस एंड अभी हमने कॉन्टैक्ट इश्यूज की बात नहीं की तो देयर आर लॉट मोर फैक्टर्स टू ऐड इन वो कॉन्टैक्ट इश्यूज पे बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे आई डोंट वांट टू टेल माय थॉट्स राइट नाउ ओके सेकेंड आई थिंक सो टूर्नामेंट पे काफ़ी बात हो चुकी है अब मोहम्मद वसीम के स्टेटमेंट पे बात कर सकते हैं आप शायद जूम इन कर लेना मेरी कुछ मुझे थॉट्स इन अ वे इस सेंस में अच्छी नहीं लगी अगर मैं शायद वर्ड बाय वर्ड चला जाऊँ जो उन्होंने कहा कि जो थर्ड पैराग्राफ है we have changed many coaches, we have changed most of the staff, but it's about time we need to look at the player side also. Why Mohammad Wasim is talking in a sense that we have changed most of the staff, we have changed many coaches. You are part of a team, आपको change करके लाया गया है. Why you are talking कि आप सब कुछ चेक कर रहे हो and you are elevating yourself up from the responsibility. आप एक हद तक बातें ऐसे कर सकते हो यू आर नॉट चेयरमैन पीसीबी और लाइक डायरेक्टर ऑफ वुमेन थिंक स्टफ लाइक दैट एक तो मुझे ये जरा अनकंफर्टेबल लगा कि थोड़ा लाइक उनके स्कोप में ये बात नहीं है बट चलो कर दी आप सीनियर्स पे बात कर रहे हो एक तरह से आपने सीनियर्स को अंडर द बस डाल दिया फेयरली और रॉन्गली बट हैविंग सेड इट उमैमा सोहेल ठीक है आई नो वो इतनी सीनियर नहीं बट हैविंग सेड इट उमैमा सोहेल इरम जावेद को आप खुद वापस लाए थे राइट उनको आपने चांसेस दिए सिद्रा अमीन को आपने चांसेस दिए जबकि 2024 उनका बहुत बुरा चल रहा था और आपने सदफ शम्स को प्रॉपर चांसेस नहीं दिए आई मीन आपको ट्रांजिशन एज बैकअप प्लान कुछ तो रखना होता है ना सबको पता है सिद्रा की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही ठीक है वो आप वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस प्लेयर आपको चाहिए होता है शायद आप बिस्मा वाला रोल उनसे लेना चाह रहे थे बट हैविंग सेड इट आप ना उनके टेक्निकल इश्यूज पे काम करते हुए नजर आए और दूसरी बात वे कि सदफ शम्स का बैकअप आपने आप फॉर एग्जांपल सदफ शम्स को इंग्लैंड का टूर बहुत अच्छा किया आप जब आए आपने एशिया कप उन्हें खिलाया नहीं साउथ अफ्रीका की सीरीज में सिद्रा और सदफ इकट्ठे खेल लिए और फ्लटर्स हम यूज कर रहे थे फातिमा एंड तोबा को तो सदफ की बारी एक मैच में आए वार्म अप मैच ले लो वार्म अप मैच पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गए ठीक है वो चलो उनका अपना ब्लेम है कि सदफ खुद ही जल्दी आउट हो गए जो दूसरा वार्म अप मैच हुआ सदफ शम्स केम एट 9 डाउन
आर यू सीरियस मोहम्मद वसीम, आर यू रियली सीरियस कि आप बैकअप ऐसे प्लान करोगे? और देन हैविंग सेड इट, आई एम नॉट एलिवेटिंग कि सदफ ने जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज आई तो उन्होंने अच्छा किया, बट जब आप प्लेयर्स को वो अगेन सकीना के टाइम में कि आप पिंग पोंग बना के रखोगे या उन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो हाउ शी इज गोइंग टू टर्न अप एंड परफॉर्म एट द बिगेस्ट स्टेज पॉसिबल। सो सकीना, आप ऐसे स्टेटमेंट्स, आपने शायद ये स्टेटमेंट्स पहले भी इस तरह के सुनिए के सीनियर्स को मूव ऑन करना है, न्यू प्लेयर्स को मूव आउट, लाइक न्यू प्लेयर्स को लाना है, तो वेयर यू आर एट विद मोहम्मद वसीम के स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते ये बिल्कुल आपने जिस तरह एंड पे कहा कि मैंने ये स्टेटमेंट्स पहले सुन रखी हैं, बहुत बार सुन रखी हैं। दिस इज लाइक क्या कहना चाहिए, कॉपी ऑफ like a lot of statements that we have seen after the World Cups. uh, और हेड कोच की तरफ से ही आती हुई ये स्टेटमेंट्स देखी हैं। अभी आपका जो कैप्टन फातिमा थी, ऑब्वियसली दिस वाज हर फर्स्ट टाइम, तो वो उस तरीके से वो अपनी अपनी बात किसी और साइड से कन्वे भी नहीं कर सकती, नहीं तो आपको इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स आ जाता, डायरेक्टली भी आ सकता था और इनडायरेक्टली भी आ जाना था अगर यहाँ हैं? पर सना मीडिया पे मारूफ होती तो तो वो चीज जो है वो चीज नहीं है इस टाइम। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है, मुझे आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, इट वाज रूज मुमताज इंटरव्यू अराउंड 26 आफ्टर 2016 वर्ल्ड कप और अराउंड 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, ओके, वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द सीनियर प्लेयर्स। ठीक है, तो आप उससे हिसाब किताब लगा लें कि उस टाइम भी ये स्टेटमेंट्स होती थी, तो इस टाइम भी ये हो रही हैं। यहीं पर एक और चीज मैं पॉइंट आउट करूंगी, अभी आपने क्योंकि बिस्मा का नाम ले दिया तो मुझे वो इंटरव्यू का क्लिप याद आ गया, तानिया मलिक साहिबा का, जिसमें ओह माय गॉड, जिसमें आई थिंक इट वाज विद सोलो जिसके साथ भी था, बट शी वाज आस्क्ड अबाउट द रिटायरमेंट्स ऑफ बिस्मा एंड जवेरिया एंड शी सेड कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, सो वी वुड नॉट फील अ डिफरेंस। ठीक है, सो I don't think that these people have any idea कि how much of a gap there is between those senior players जिन्होंने decade लगाए हैं इस गेम के अंदर, और वो प्लेयर्स जिन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक खेल के रखा हुआ है या फिर इंटरनेशनल के अंदर वो इन एंड आउट रहे हैं। इनको बिल्कुल, कोई आइडिया नहीं है कि वो गैप इनसाइड विद इन द पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट सेटअप कितना बड़ा है। आप उस गैप को तो छोड़ दें कि जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके अंदर है, उस गैप को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। जो गैप आपके वो प्लेयर्स जो जो जिन्होंने इतने टाइम खेला है और जो आपका एलीट ग्रुप था, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो उस ग्रुप के अंदर जो आपके जो बाकी प्लेयर्स थे उनके अंदर कितना बड़ा गैप है, इनको इस चीज का आइडिया ही नहीं है। आप उस चीज का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि आप आज भी मुनीबा अली के स्टार्स निकाल के देखें, इवन आफ्टर सो मैनी तो नहीं बट क्वाइट अ फ्यू बिग यस, नॉक्स दैट शी हैज, अगर आप उनके ओवरऑल स्टैट्स निकाल के देखें तो वो कहीं पर क्लोज नहीं आ पाएंगी शायद जवेरिया और बिस्मा के स्टैट्स के। यस, ठीक है, एंड अनकन्विंसिंग है, या शी हाँ तो एंड शी इज वन ऑफ दोज पीपल जिनको बकायदा जिनके पास एक नेचुरल टैलेंट भी मौजूद है, यस, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की गई है, एंड शी इज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसके बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि उसको जो है वो चांस नहीं मिला या उसको कंसेक्टिव चांसेस नहीं मिले, ऐसा यस, नहीं है उनके साथ। ठीक है, तो आपको उस गैप का अंदाजा ही नहीं है कि वो गैप कितना बड़ा है, किस तरह का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जो सिचुएशन ये है वो ये है कि इट्स काइंड ऑफ के वसीम खान was probably sorry वसीम खान के मोहम्मद वसीम was probably trying to say कि इसमें गलती मेरी नहीं थी, टीम ही ऐसी थी। ठीक है, यस, तो ठीक है अगर आप ये बात कह भी रहे हैं, बट अब मैं ये बात कहूंगी और फिर शायद वही उल्टी आ जाती है कि अभी आप कर लें ये काम, आप कंप्लीटली टीम चेंज ले जाएं, बट रिजल्ट आपको इससे भी बुरे ही मिलेंगे। उसकी रीजन ये है हाँ, कि गैप बहुत बड़ा है और वो इस तरीके से कवर नहीं हो सकता इस तरीके से जिस तरीके से यस, आप करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि शायद जो आपका यंग प्लेयर आएगा वो कोई जादू की छड़ी लेकर आएगा, उसके पास नहीं है वो जादू की छड़ी। और जादू की छड़ी यस, होनी भी कैसे है कि जब आपके जो डोमेस्टिक मैचेस हैं, आपका कैलेंडर कहाँ है डोमेस्टिक का? आप कह रहे हैं कि यस, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, आपका डोमेस्टिक का कैलेंडर कहाँ है मुझे ये बता दें। वो ही यस, नहीं आ रहा आपका इतने टाइम से। इट्स आप ब्लडी इस तरीके से नवंबर, यस, ऑलमोस्ट नवंबर आ गया।
एग्जैक्टली ठीक है, आपके Yes. प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने थे वो नहीं हो रहे। आपका बिल्कुल। पीसीबी कहता है कि हम बजट इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो आपके डेली अलाउंसेस रोक दिए जाते हैं। Yes. क्या बात कर रहे हैं आप? हमने कोचेस चेंज किए, हमने ये किया, हमने वो किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वही काम किया जो कि जो कि वो जिसे हम कहते हैं ना कि हम फेस वैल्यू पे जाते रहते हैं। हाँ, जो आपकी जड़ बिल्कुल। है मसले की, आपने उसको तो हाथ कभी डाला ही नहीं है। तो आप Yes. तो सिर्फ सिर्फ फेसेस चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वही आप इस टाइम भी आपकी कोशिश यही है कि हम सारा का सारा जो ब्लेम है वो प्लेयर्स के ऊपर डाल दें एंड Yes. देन वी कैन मूव ऑन। वो मूव ऑन नहीं हो सकता। और अब आप क्या इस पे कर रहे हैं कि आपके सीनियर प्लेयर्स अब हमें पता है कि 1 से 2 रिटायरमेंट्स आने वाली हैं, ठीक है? तो जो सीनियर तो खत्म हो जाएंगे आपके, जिनको हम एक्चुअली सीनियर कंसीडर करते थे, इन अ सेंस कि उनके उनके सिर्फ सिर्फ मैचेस के नंबर्स नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी। बिल्कुल। फिर तो आपके पास वो वाला ग्रुप रह जाएगा जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि अभी तक उस तरह का इम्पैक्ट उन प्लेयर्स का हमें देखने को नहीं मिला है। पोटेंशियल है, फिर तो आपका वो वाला ग्रुप टॉप पे आ जाएगा। Yes. और फिर कितना अर्सा उनके साथ आपको बॉदर करना गुजारा करना पड़ेगा, वो भी आपको देखना है। Yes. हाँ, और आई मीन ठीक है, आपने बात कर दी। सकीना प्लीज माइक म्यूट कर। हाँ, थैंक यू। वही जैसे मैंने पहले कहा कि फिर अपना लाइक वो अपना वे ऑफ एक्शन भी तो दिखाओ ना, कि आपने बातें कर ली, एक तुझे पब्लिक में ऐसे बातें लाइक सीनियर्स पर लाइक आप अपने पॉइंट को डबल अप भी कर, एक लाइक बिटवीन द लाइंस में आप ये बात कर सकते थे। ठीक है, पब्लिक में आपने कुछ ना कुछ प्लेयर्स को भी एक तरह से फील करवाना था कि यू वर रॉन्ग, बट इस बात को करने को कुछ और भी वे थे। बट जैसे मैंने सदफ शम्स की एग्जांपल दी थी कि ओके, आपको लग रहा है कि सीनियर्स, आपको शायद वर्ल्ड कप से पहले पता लग चुका था कि सीनियर्स शायद नहीं परफॉर्म कर रहे, लाइक्स ऑफ आलिया, लाइक्स ऑफ सिद्रा। हम लोग पॉडकास्ट में बात करें तो ऑफ कोर्स आप लोग भी सोच रहे होंगे, बट अपना वे ऑफ एक्शन भी तो दिखाओ कि आप विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द मैचेस। आप साउथ अफ्रीका की आपको सीरीज मिली, उसमें आपने सदफ शम्स को चांस नहीं दिया, तो देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट कि सीनियर्स नहीं परफॉर्म करे तो हम नए प्लेयर्स को लाएंगे? आप नए प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करें तो देन where are you standing? I am really baffled by whole Mohammad Wasim statement thing. अच्छा, इसके ना Q&A segment in a shortly like quick fire रख लीजिएगा, because we have already spent a few thoughts around this, but we have to respect our viewers, and I would say thanks to all of them. So first up is Darab, Nida and Alia. His comment is Nida and Alia, their general performance and where do they stand going forward? Do they still have a future value to add, or is it time to try new players and give them an extended run? And he adds more. Linked to this, any new emerging players in domestic circuit who could come in their place? So Skinner, have your thoughts. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल T20 से तो ऑब्वियसली निदा जो है वो अब काइंडा कोई रीजन नहीं बनती है कि अब जब कोई भी T20 की सीरीज आती है तो उसमें निदा का पार्ट होना। आलिया को लेके ये भी आई फील लाइक के it's going to be a tough call because she is fit, that's not an issue, but it's all about के उनकी फॉर्म जो है वो इतनी कोई um, बहुत इनकंसिस्टेंट है आलिया, ठीक है? हमें बहुत कम उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती हैं, जब वो देखने को मिलती हैं तो शी कैन विन अस मैचेस, बट अदर देन दैट काइंडा जो है ना वो बर्डन हो जाती हैं टीम के ऊपर। आई एम गोइंग टू से इट। सो आलिया को लेकर तो मैं ये कहूंगी कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल, बट आई स्टिल फील लाइक इफ आपके डिपेंड करेगा कि आप कंपोजिशन किस तरह का बना रहे हो, ठीक है? अगेन आई एम नॉट इन अ इस चीज के मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ कि आप एक साथ ही जो है वो सारे के सारे सीनियर्स को हटा के जो है वो दूसरा ले आओ, स्पेशली तब जब आपके पास वो प्लेयर्स कम हो जाते हैं कि जो एट द मोमेंट स्टैंड ले सकें या फिर कंट्रोल ले सकें चीजों का। आई नो आलिया इज नॉट वेरी गुड विद इट एज वेल, बट आई विल आई विल से कि इट डिपेंड्स कि आप क्या टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो फिर वहां पर आप डिसाइड करोगे कि यू वांट टू पुट आलिया इन इट और नॉट। और ओवरऑल अगर हम बात करें T20 के अलावा, मतलब कि ओडीआईस की बात करें, तो आई अगेन आई एम गोइंग टू से कि इट्स इट्स लाइक अ कि सिचुएशन ये है कि आप इधर भी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है वाला हाल है कि आप अगर आप सीनियर्स को ड्रॉप नहीं करते हैं एंड यू स्टिल आप क्वालिफायर्स के अंदर आप परफॉर्मेंस नहीं पुट कर पाते
सीनियर्स के साथ होते हुए भी, तो फिर भी फिर एक वही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई यू डिडंट लाइक चेंज मूव मूव फॉरवर्ड विद क्या मैं बोल रही हूँ कि आपने क्यों जो है वो नए प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप उनको रिप्लेस कर देते हो और फिर भी आपके रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर भी यही क्वेश्चन उठेगा कि आपने क्यों सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जबकि आपको पता था कि क्वालिटी मौजूद नहीं है प्लेयर्स के अंदर। सो इट्स एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो जिस तरफ भी जंप करना चाहे टीम मैनेजमेंट उनकी मर्जी है, वो लगा लें जंप। जहाँ तक न्यू प्लेयर्स की बात है, so for Alia, I feel like Hamna Bilal is someone who can be a good replacement in coming years. Like we will have to give her extended run to make really make an impact. And I feel like she is a quality bowler. तो वो जो हम चीज़ देखते हैं ना कि आलिया जो है उसे बड़ा नाम ऑलराउंडर खेल रही होती हैं, सो हमना कुड बी समवन जो कि एक अच्छे तरीके से आपको एक ऑलराउंडर जो है वो आपके लिए एक हैं। जहाँ तक निदा की रिप्लेसमेंट की बात है, तो आई फील लाइक के एज एन ऑलराउंडर जो उनका स्टेटस है टीम के अंदर, वो चीज शायद आपको उमायमा या तूबा इज समवन हु कैन लाइक गिव Yes. यू दैट थिंग। ठीक है। तो आपको जो आपकी अभी जो प्लेयर्स उनके अराउंड खेल रहे हैं, उन्हीं में से कोई आपका को निदा को जो है पोटेंशियली रिप्लेस कर सकता है। और फिर उसके बाद आप किसी न्यू जो आपके पास स्पिनर्स हैं हमारे डोमेस्टिक के अंदर से लेकर आ सकते हो। और स्पिनर्स की यहाँ बस कमी नहीं है, उसमें अनुषा नासिर देख लें, आप माहम देख लें, अरिशा नूर भी हैं, और लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्पिनर्स और बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो वो एक इशू नहीं होगा। लेकिन वो जो ऑलराउंडर के तौर पर जो स्टेटस है, आई फील लाइक के तूबा और उमायमा इज समवन दैट कैन फिल दैट रोल, बट अगेन they they will have to step up big time. Yes, so true. Okay, two questions. Then we will have parting thoughts. Skinner, Micah. Uh, uh, okay, Asim, at the rate of not artistic one, management has changed, but Tuba couldn't get to bat higher. What can be the reason? किसा आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करूँ? सेकेंड आंसर करेंगे Asim के क्वेश्चन को. How can we get rid of Iran? And do we need Sidrak the T20 lineup? किसा आप शायद ये पॉडकास्ट सुने या हमारी पिछले वाली एक पॉडकास्ट में मैं भी आपके साथ था, तो you might well know my thoughts, और at the current moment Sakina ने भी अपनी thoughts put कर दे कि she doesn't warrant the place, we have to look on the alternates. तुबा पे बात करें Sakina, फिर parting thoughts लेते हैं. तुबा को लेके आई फील लाइक के आई थिंक उनको जो है ना वो टीम मैनेजमेंट ने यूज करने की कोशिश की है एज अ लो वैल्यू विकेट। ठीक है। तो इसी वजह से वो उस तरीके से कंसिस्टेंटली हमें जो है वो नहीं नजर आई अपने ऑर्डर। सो आई डू फील लाइक कि अगर हम उनको कर रहे हैं इस तरीके से कि हम उनको एज अ निदा के रिप्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये होगा कि द मोमेंट निदा वॉक्स आउट, हम तुबा को जो है वो अब द ऑर्डर देख लेंगे। सो आई थिंक इट्स मोर लाइक कि आप जो है वो उस टाइम पे जो आपके वो बैटर्स जो के मैनेजमेंट फील लाइक दे आर प्रॉपर प्रॉपर बैटर्स, तो उनको चांस ऊपर दे देती है, क्योंकि बिकॉज यू वांट योर गुड प्लेयर्स टू बैट फर्स्ट, राइट। जो आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर या आपकी एटलीस्ट हाँ, जो हमें हाँ. स्टैटिस्टिकली लगता है। ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यही रीजन रही है। सो आई फील लाइक द मोमेंट you move away from players like Nida, you will automatically see Tuba batting up the order. Okay, all right, perfect. So Skinner, last question from my side, वो parting thoughts ही होंगे आपके. And just a reminder कि central domestic contacts और earning pass, तो जो टीम बगैर तनख्वाह लिए खेलने गई है उससे आप मेंटली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्या चीज़ छोटे हैं स्टफ हो रहा है, तो what else we should be. ठीक है, प्लेयर्स पे थोड़ा हम क्रिटिसाइज करते हैं जितना क्रिटिसाइज करना बनता है. Why are you giving us chance? प्लेयर्स पे क्रिटिसाइज करना एट टाइम आई फील कि हम शायद ओवरली क्रिटिसाइज कर जाते हैं जब वो स्पेसिफिकली वुमेन्स क्रिकेटर जिनके ऑलरेडी बहुत मुश्किलात होती हैं, सोशल इश्यूज ले लें, कल्चरल इश्यूज ले लें, हेल्थ इश्यूज ले लें, स्टफ लाइक दैट. बट एनीवे, सो पीसीबी सॉर्ट दैट आउट. वो वुमेन सुपर लीग का वादा, another chapter in fast promises, और अंडर 19 आई नो T20 कप स्टार्ट हो चुका है, डोमेस्टिक लाइक इट इज ऑन गोइंग, बट स्टिल इट हमें एक मंथ मिलेगा बिटवीन एशिया कप, लाइक वो दिसंबर में, मिड दिसंबर में. सो आई रिक्वेस्ट अर्ज ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू एम्प अप द एंटी ऑन
like in a like respectful way कि पेशे पे प्रेशर बढ़ाए कि अरेंज फ्यू सीरीज टीम अच्छे से चुने. सो उसके ना व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट लाइक नेशनल टीम की बात करें आई थिंक सो हमें ओडीआई के क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे. व्हाट नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ के सीरीजेस क्या होने लगे. आई नो कैलेंडर नहीं आया वो भी एक टॉकिंग पॉइंट है. प्लीज आस्क पीसीबी टू रिलीज द फिक्सचर लिस्ट अगर अभी तक नहीं की. तो उसके ना पार्टिंग थॉट्स व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट. अभी आपने जो पर लिखा हुआ है ना डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स का और वुमेन सुपर लीग का, सो ये तो नहीं होने वाला. ये तो अभी और नो आई वाज जस्ट लाइक I'm not serious about it. I don't have any insider. I was just like scrolling through and I saw a few tweets which were claiming that PCB is running short on funds, and I was like, really? oh Like they just give so much to mentors just now. yes So how they ah are running low on funds right now? So yes like I don't know what they are doing. Like they are literally running PCB right now as some government office. I was going to say it. as कि circus समझ bro नहीं आ रहा as circus. कि कर क्या रहे हैं ये लोग. कि हमें स्टेटमेंट्स इतनी हैवी देखने को मिलती हैं जैसे कि वो जो yes पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं ना कि हम लोग इनकलाब लेकर आने वाले हैं, बस बस अब देखते जाओ. yes जब yes हम एक्चुअली काम की बारी आती है तो कुछ स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल नजर नहीं आता है, तो आप सोचते हो कि मतलब कि क्या रहा है फिर. सो आई एम नॉट श्योर कि आप क्या मतलब है कि मैं इस टाइम क्या बोलूँ, क्योंकि अभी हमें ये पता है कि हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने हैं. उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी आपकी अनाउंस हुई है पीसीबी की तरफ से कोई सीरीज या कुछ चीज, कुछ भी नहीं है इस तरह का. आई फील लाइक दे विल वेट फॉर इटर्निटी टू लाइक अगेन कि कोई हमारी सीरीज आ जाए या इस तरह की कोई चीज आ जाए. आई फील लाइक बट आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि हम कुछ डोमेस्टिक खेलें पहले कि हम दोबारा से किसी सीरीज की तरफ जाएं, कुछ प्रॉपर डोमेस्टिक मैचेस हो जाएं जस्ट yes टू लाइक कि प्लेयर्स को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए yes और ये सब चीज़ को लेके. uh, तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अंडर 19 का है, ऑब्वियसली पीसीबी मतलब कि टूर्नामेंट डोमेस्टिक हो रहा है, बट द थिंग इज कि जब तक आप अपने अंडर 19 टीम को एक दफ़ा एक्सपीरियंस नहीं कराओगे इंटरनेशनल मैचेस का, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ एक बहुत बड़ा एक चीज़ को मिस कर रहे होते हो. आई आई थिंक कि बहुत सा कुछ प्लेयर्स होंगे ऐसे इस अंडर 19 ग्रुप के अंदर जिन्होंने खेला है इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल टीम से खेला है. जैसे हमारी अंडर 19 की सीरीज हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश, तो बिल्कुल Samia was there, so she's still eligible. Obviously, she will be eligible for like next 4 or 5 yeah years. So, um, so I feel so there are going to be a few players जिन्होंने खेला है, but I think कि as a group जिस group को आप shortlist कर रहे हो to play the World Cup, play the Asia Cup, उस ग्रुप के ऊपर थोड़ी सी अगर उसको पहले भी एक सीरीज आपको होम ग्राउंड में मिल जाए तो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग. लेट्स होप कि पीसीबी उस चीज़ को कंसिडर कर ले. और इसके अलावा आई वांट पीसीबी टू बी प्रोएक्टिव, जो कि वो नहीं yes है बिल्कुल भी. देयर इज और सिर्फ प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखने की भी जरूरत है. आपका आपके कोच ने अभी ही जस्ट थ्रो योर प्लेयर्स अंडर द बस, और कल बिल्कुल को आप डिसाइड करते हो कि यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अवे फ्रॉम सीनियर प्लेयर्स, और आप कुछ को रिटेन कर रहे हो, तो हाउ डू यू थिंक इज गोइंग टू लुक लाइक इन द ड्रेसिंग रूम. तो कहीं ना yes कहीं वो करवाहट आ जाती है फिर. ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है पीसीबी को. लेकिन पीसीबी खुद स्टेटमेंट्स देने से बाज नहीं आता एज एन yes इंस्टीट्यूट, yes तो वो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने कोचेस को या और लोगों को रोक सकते हैं. बट आई थिंक जो मैं प्रोएक्टिव होने की बात कर रही थी, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कैलेंडर दे दें हमें, डोमेस्टिक का भी इंटरनेशनल का भी, तो शायद हमारे for लिए भी God's थोड़ा sake सा mm, बिकॉज आई डोंट नो कि हाउ मच प्लेयर्स आर अवेयर कि उनका हाँ डोमेस्टिक कैसा दिखने वाला है. बट बिकॉज एट टाइम्स आई फील लाइक कि प्लेयर्स को भी नहीं पता कि उनको हाँ नहीं डोमेस्टिक कब पता मिलेगा और किस शक्ल में मिलेगा. तो आप हाँ इतनी अनसर्टेनिटी
दे रहे हो प्लेयर्स को, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि प्लेयर्स जो हैं वो 100% और हर टाइम रेडी रहेंगे टू फेस द चैलेंज और एवरीथिंग, तो जब आपने इतना ज़्यादा हर चीज़ को अनसर्टन किया हुआ है। सो Yes. या जस्ट बी प्रोएक्टिव ऑन थिंग्स, और कहीं आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यस, बिल्कुल। हाँ, वही बात है कि प्लेयर्स हमें वो मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको ट्विटर टाइमलाइन भी शायद वो जब श्रीलंका के खिलाफ हमने रिजल्ट लिया या न्यूजीलैंड को काइंड ऑफ वो ग्लिमर ऑफ होप मिली थी कि वी कैन क्वालिफाई। जब इतना एक छोटे से रिजल्ट पे आपको इतना मोमेंटम मिल सकता है, तो व्हाई यू डोंट टेक केयर ऑफ इट? जस्ट सिंपल केयरिंग स्टेप ले लें तो our women's cricket can excel it more। और मेरे फिर वही I'm very much disappointed these days with not with players as such, of course players के साथ disappointment होना बनती नहीं, but I know I really love working for women's cricket and stuff like that, but I'm kind of like at all time low in terms of motivation कि यार कैलेंडर ही नहीं है क्या, मतलब क्या बात है, सर की सफा बोर्ड है। I'm not going to miss my work, so I know I will feel better। that is kind of therapy session। अस्किना कुछ कहना चाह रही? या आई वाज जस्ट सेइंग कि आपने अभी जो स्टार्टिंग में उससे पहले पॉइंट मेंशन किया था कि प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने पे, आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म को बुरा ना माना जाए, और वो ऑब्वियसली हम बुरा मानते भी नहीं है, बट द थिंग इज कि एट टाइम्स इट्स सो लाइक ऑन द नोज कि आपको लग रहा होता है कि शायद सारा का सारा कसूर ही प्लेयर्स का है, और वो चीज़ ऐसी नहीं होती है, स्पेशली इन अ सिस्टम लाइक पीसीबी। तो वहाँ पर आई फील है कि जहाँ तक प्लेयर पे क्रिटिसिज्म की बात है, तो वी डू क्रिटिसाइज प्लेयर्स, और वो अभी आप इस पूरी अगर पॉडकास्ट को कोई सुनेगा बैठ के, तो वी हैव क्रिटिसाइज प्लेयर, हमने थोड़ा सा बल्कि उसको ड्रैग कर दिया बकायदा। तो Yes, that's not the issue, but the thing is कि when you are criticizing player you have to also consider कि जो पीसीबी की तरफ से जो एज अ सिस्टम जो लैग है वो कितना बड़ा है, और उसकी वजह से वो जो गैप है आपका वो इतना ह्यूज है बिटवीन योर प्लेयर्स एंड द इंटरनेशनल प्लेयर्स, कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप यू कांट जस्ट से कि आपका प्लेयर जो था वो ऑब्वियसली दे एट टाइम्स डिजर्व क्रिटिसिज्म एज वेल, और वो चीज़ बनती है, वो हम करते भी हैं, बट द थिंग इज कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ अ वन प्लेयर, इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ अ टू प्लेयर। अभी भी आप देख लो तो आपकी ऑलमोस्ट पूरी पूरी टीम ही फेल कर रही थी। बहुत कम स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी, बहुत कम इक्का बिल्कुल। दुक्का प्लेयर, यू कैन जस्ट से लाइक मैं कह सकती हूँ फातिमा, सादिया और नशरा के अलावा आई Nashra, वाज़न्ट इम्प्रेस्ड विद एनीवन, yes, ठीक है। दैट वाज इट। आपने बता हम मैं ये कह सकती हूँ कि 3 ही प्लेयर थे शायद जो परफॉर्म कर रहे थे। आई होप कि आई yes। हैवंट मिस्ड एनीवन ने परफॉर्म किया। नहीं, हाँ, नहीं। लेकिन बट दैट्स द ट्रुथ, ठीक है। तो जब आपका इतना इस तरीके से आप फेल करते हो, तो फिर आपको है ना क्वेश्चन बनता है, वाज द सिलेक्शन अप टू द मार्क, वाज द कोचिंग अप टू द मार्क, और द सिस्टम Yes, फ्रॉम व्हिच द प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम, दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। जब आप पीछे फिर आपको देखना पड़ता है पीछे कि क्या yeah, पीछे के जो steps थे वो प्रॉपर्ली हुए भी हैं कि नहीं हुए हुए। तो वो तो नहीं हुए हुए ना, आपको नजर आता है। जस्ट लाइक कीप अ बैलेंस, कि आप जिस टाइम क्रिटिसाइज हाँ, कर रहे हो, जस्ट डोंट थिंक कि सारा कसूर प्लेयर्स का ही है। और जो वर्ड्स आप लोग यूज करते हैं, हमारे क्रिटिक्स जो हैं, कि बजट इतना yeah। मिल गया इन्हें, सारा सारा का सारा हमारे टैक्स के पैसे जो हैं वो वुमेन की खा जाती है। पता नहीं कौन सा टैक्स है जो एक तो गवर्नमेंट से टैक्स का टारगेट पूरा हो नहीं रहा, और फिर टारगेट थोड़ा बहुत अचीव करता है, वो भी वुमेन क्रेडिट खा जाती है भाई। तो या दैट्स हाँ, इट। बिल्कुल आई सही, वाज बिल्कुल रैंटिंग। सही। हाँ। Okay, so just viewers, these were our thoughts, our kind of analysis. मैं तो अपने word में बोलूँगा, I'm not an analyst or stuff like that. And of course rants भी थी, काफी लोग enjoy करते हैं rant को, so there were rants. Thank you to जो जिन्होंने questions ड्रॉप किए, एसन, दराब, Kisa and Sadia. And I must say congratulations to Iman, of course, wonderful resource person. Congrats Isasme that she has worked with Scotland women's cricket in this particular World Cup. उनकी social media team के साथ connected थी, and of course अब one role more higher. So a really proud moment for Pakistan women, I would say.
and of course she is a renowned figure for Pakistan women's cricket. Hopefully she gets to serve Pakistan women's cricket जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा need है, and of course environment needs to be as such के the people like her, the skilled people जो भी हैं, मैं ईमान पे नहीं focus करना चाहता, but anyway Iman, if you are listening, very proud of you. I didn't know, but it really came as shock, but wonderful surprise. Keep shining. And on that note, we will return from the end. Allah Hafiz. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी।